Hello guys, welcome to in my third last lecture on direct and indirect, which we will be analyze here. How can we change the imperative sentence into indirect speech? So this lecture is for the beginners. So let's get started. There are certain rules of indirect speech. How can we change the imperative sentence? So there are many rules. You can say there are certain rules. So first, imperative sentences are those that indicate request, suggestions या command or orders. So imperative sentence जो होता है वो indicate करेगा हमेशा request को, suggestion को, command या order को. So who I have already discussed with you that there are certain rules. So first we should be able to understand what is imperative sentence. So now look at the solution how to change an imperative sentence from direct into indirect speech. So there are some examples, but these example I translated it into indirect speech for your better understanding. First is the father ordered his son to bring him his result card. The policeman suggested not to walk along there. The teacher advised students not to take that exam lightly. So these are three examples who I have already changed it into indirect speech. But I will tell you indirect speech of same sentences but after few seconds, so please just wait. So there are certain rules of imperative sentences. So there are some basic rules to solve the imperative sentence indirect speech and exercise who I will discuss with you just few seconds. So first rule is here that can understand the nature of the sentence, whether it is command, request or advice. हमें पहले क्वेश्चंस की सेंटेंस की नेचर को समझना होगा कि इसके अंदर हम कमांड यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज करेंगे, ऑर्डर यूज करेंगे या क्या नेचर क्या है सेंटेंस की. The second rule is here: change the reporting verb sets into requested, order, commanded, suggested या advice. जो हम चेंज करेंगे ना रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, आई मीन टू से सेड या सेड टू, इसको हमने रिक्वेस्ट में बदलना है, ऑर्डर में बदलना है, कमांड में बदलना है, सुजेस्ट में या एडवाइस में. बट दीज वर्ड्स, ये जो अल्फाज है, हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के एज कंपेयर यूज करेंगे या इन रिप्लेस यूज करेंगे. बट ये जो है वर्ड्स हम एज पर दी नेचर यूज करेंगे कि सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच क्या डिमांड कर रहा है हमसे. अगर वो हमसे रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा है जिसमें वो प्लीज का लफ्ज यूज करेगा, ठीक है. और भी सर्टेन वर्ड्स आर हियर व्हो आई विल डिस्कस विद यू. या वो एडवाइस कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड कर रहा है किसी चीज के बारे में, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ये हमें रिपोर्टेड स्पीच बताएगा, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच. हमने रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच को तब्दील करना होता है. सो व्हाट इज थर्ड रूल्स आर हियर. सो थर्ड रूल इज हियर दैट के इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद प्लीज, चेंज इट्स विद रिक्वेस्ट और इग्नोर इट. अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेड को हम रिक्वेस्ट के अंदर बदल देंगे. समझ आ गई. सो देयर आर द फोर्थ रूल ऑफ imperative sentence. So यूज द वर्ड टू इंस्टेड ऑफ डेट फॉर कॉमा. हम कॉमे को हटाने के लिए पहले डेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम टू का इस्तेमाल करेंगे. सो दीज आर फोर बेसिक रूल्स फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस. इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन we will be able to solve the exercise as soon as possible with proper understanding. So let's move to exercise. So first sentence is here: Father said to his son, bring me your result card. Father ने बच्चे से कहा कि अपना रिजल्ट कार्ड लाओ, मेरे पास अपना रिजल्ट कार्ड लाओ. So father said to his son,
This is a father always be demanded to his uh, son as a order. So father just like as a order, as a advice. So this sentence, as per if we analyze the nature of this sentence, we will be able to understand that this is not a advice, this is a order. So father order his son, फादर ऑर्डर हिज सन, बाप ने अपने बच्चे से कहा। रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है? थर्ड रूल ऑफ दिस इंपेरेटिव सेंटेंस इज के हम जो है वो इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए डैड की बजाय टू का इस्तेमाल करते हैं। तो फादर, जस्ट वेट अ मिनट, फादर ऑर्डर, यहां तक हम समझ गए। ही सन, अपने बच्चे को उसने कहा, ठीक है। यहां हमने इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए क्या यूज करना है? हमने टू का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। टू ब्रिंग, सेम आ गया। अब यहां था ब्रिंग मी, ठीक है। मी, आई, माई, मी इज अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। सो व्हाट विल बी द जो है वो, व्हाट विल बी द objective case of son? So son, you can analyze, you can take it as a he. So he, his, him. So son, तो he का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा फिर? he का ऑब्जेक्टिव केस होगा him. So यहां हमने bring के बाद फौरन लगाया him, क्योंकि यहां क्या यूज हुआ था? me is a objective case of I, ठीक है। तो यहां हमने सन को एज ए प्रोनाउन लेना है, तो हम उसको जो है ना पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अगर हम लेते हैं तो सन इज अ मेल, सो मेल को हम ही से जाहिर करते हैं। सो ही का पोजेसिव केस क्या होता है? ही, हिज, हिम। सो हमने यहाँ हिम का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। हिम, मी लगा दिया, आगे था योर, यू, योर, योर इज अ you can say possessive case of yes, your is a possessive case. So हमने यहाँ इसके ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है योर को। तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा? ही का पोजेसिव केस होता है हिज, ही, हिज, हिम। सो हिज इज अ पोजेसिव केस ऑफ ही, ठीक है। आगे रिजल्ट कार्ड सेम आ गया हमारा। सो दोबारा देखिए सेंटेंस को, फादर सेड टू हिज सन ब्रिंग मी योर रिजल्ट कार्ड। फादर, दिस इज ऑर्डर। सो फादर ऑर्डर हिज सन, फादर ने अपने बच्चे को हुक्म दिया। इन्वर्टेड को कोमा खत्म करने के लिए हमने टू का वर्ड यूज किया, टू ब्रिंग, सेम आ गया। सो मी इज हेयर अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, आई, माई, मी। सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही? तो ही का हमने ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लगाया यहाँ पे हिम। आगे हमारा जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो है योर। सो योर इज अ पोजेसिव केस ऑफ यू। सो हमने यहाँ ही का पोजेसिव केस देखना है, तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा? ही का पोजेसिव केस होता है हीज, ही, हिज, हिम। सो आगे रिजल्ट कार्ड सेम। सो आई थिंक कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट सेंटेंस। द पुलिसमैन सेड डू नॉट वॉक हियर अलोन। पुलिसमैन ने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ जो है अकेले जो है वो चलो मत, या अकेले सैर मत करो। अब पुलिसमैन, दिस इज नॉट ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर होता तो वो किसी और जो है ना वो अंदाज में बात करता, लेकिन उसने कहा कि डू नॉट वॉक हियर अलोन। द पुलिसमैन सुजेस्टेड, पुलिसमैन ने उसको सुजेस्ट किया, ठीक है, उसको बताया कि भाई यहाँ ना वॉक करो, मे भी तुम्हारे लिए खतरा हो। सो अगर ये बात वो कर रहा है कि यार यहाँ जो है ना वो सैर मत करो या यहाँ चलो मत, ठीक है, क्योंकि मे भी तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तो दिस इज अ सुजेस्ट नॉट ऑर्डर, ठीक है। द पुलिसमैन सुजेस्ट, ठीक है, नॉट, डू नॉट था, हमने उसकी जगह नॉट लगा लिया। अब इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? टू। वॉक सेम था, अलोन अकेला, हेयर किस में बदलता है? देयर में। द पुलिसमैन सजेस्टेड नॉट टू वॉक अलोन देयर, कि यहां मत जो है ना वो सैर करो। दिस इज अ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ जो है ना डायरेक्ट स्पीच। सो थर्ड सेंटेंस इज हेयर, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, शट अप डोंट से मोर, कि अब बकवास बंद करो, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। दिस इज ऑर्डर। शी ऑर्डर हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। शट अप सेम आ गया, ठीक है। नॉट शट अप
चुप कर जो। हमने यहाँ क्या यूज किया था, कॉमा यूज किया था, तो कॉमा को खत्म करने के लिए हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एंड का, एंड, ठीक है। डू नॉट, नॉट में बदला, ठीक है, नॉट टू से मोर, समझ आ गई है, नॉट टू से मोर। ही ऑर्डर टू हर फ्रेंड्स टू शट अप एंड नॉट टू से मोर, और कुछ मत कहो, चुप कर जाओ, और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो। नेक्स्ट है, ही सेड ओपन योर बुक क्विकली, उसने कहा कि अपनी किताबें जल्दी से ओपन करो। ही, दिस इज अ ऑर्डर, ठीक है। अब टीचर एक रिक्वेस्ट भी कर सकता है, बट यहाँ टीचर का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन हम किताबों से रिलेटेड बात करते हैं तो घर में ओपन नहीं कर सकते, हम स्कूल्स में ही ओपन करते हैं, कॉलेजेस में ओपन करते हैं, सो हम टीचर का वर्ड यूज करते हैं। तो टीचर एक आपसे वो सजेस्ट भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक है, और आपको एडवाइस भी कर सकता है। लेकिन ये फिक्रा अगर हम, इफ वी एनालाइज द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस, देन ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि टीचर ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि सजेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर यहाँ नसीहत भी नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑर्डर है। ही ऑर्डर टू, ही ऑर्डर, उसने, ही सेड किस में बदला, ही सेड किस में बदला, ऑर्डर में। इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए हमने टू का वर्ड यूज किया, ठीक है। ओपन द बुक, सेम आ गया, ठीक है। क्विकली, दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब चेंज नहीं होता, जो जैसे सेम था वैसे ही आएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, डू नॉट टेक दिस एग्जाम लाइटली, टीचर ने तालिब इल्म से कहा कि इस एग्जाम को लाइटली मत लो। सो दिस इज द एडवाइस, ठीक है। अब ये वहां पे टीचर यहाँ पे एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट को। सो टीचर सेड किस में बदला, टीचर एडवाइस, स्टूडेंट्स सेड टू किस में बदला, एडवाइस में, टीचर एडवाइस्ड स्टूडेंट्स, डू नॉट किस में बदलता है, नॉट में, नॉट टू में, ठीक है। नॉट टू टेक, सेम आ गया। दिस किस में बदलता है, दिस किस में बदलता है, दिस विल बी चेंज ऑन डैट, दिस डैट में तब्दील होगा, ठीक है। एग्जाम सेम आ गया, लाइटली सेम आ गया। सो लाइटली इज, दिस इज अ सेकंड एडवर्ब, ठीक है। दिस, ये भी एक एडवर्ब है। सो हमने यहाँ देख लिया कि ये पूरे सेंटेंसेस को, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रूल्स का पता चल गया है कि हमने सेड टू को किस में तब्दील करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या इस्तेमाल करना है, ये चीज आपको अगर आती है, तो आपको 7% प्रोनाउन का टेबल आता है, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अगर ये चीजें आपको आती हैं, तो यहाँ मेजर चीज होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कि हाउ कैन वी चेंज द पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ब्लंडर मार देते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का ही नहीं पता चलता कि हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, तो वो फंस जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आके, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें आपको आती हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं जो एज ए ट्रिक्स हम यूज करते हैं। रूल्स एक बहुत बड़ा, आप समझ ले कि हैवी किस्म का एक बर्डन होता है इंसान के दिमाग के, रूल्स को कैसे याद करें। तो भाई सॉरी प्लीज, अगर आप रूल्स को याद नहीं कर सकते ना, तो एज ए ट्रिक देखो कि सब आपको सेंटेंस नेचर, सेंटेंस की नेचर क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे, ठीक है। अगर सेंटेंस को डीपली एनालाइज कर लोगे ना, तो यकीन मान रूल एक भी याद ना रख सॉरी प्लीज, सिंपली एक दफा उसको पढ़ लो ना, तो मैं खुद याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड लेडी सेड प्लीज हेल्प मी। सो मैंने आपको रूल्स के अंदर बताया था कि जो फिक्रा प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्टेड। ओल्ड लेडी सेड किस में बदला, रिक्वेस्टेड में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या यूज किया, टू हेल्प मी है, मी इज अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। सो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी, हर, हर, तो हर इज अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी। नेक्स्ट वी है एंड लास्ट, दिस इज अ लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज हियर। टीचर सेड डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, टीचर ने कहा कि क्लास के दरमियान जो है वो बातचीत मत किया करो। ये टीचर मना कर रहा है किसी चीज के बारे में, तो टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना किया, ठीक है। फ्रॉम टॉकिंग, किस चीज से मना किया, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, ड्यूरिंग द क्लास टाइम, क्लास टाइम के। अब आप सोच रहे होगे कि ये डू नॉट किस कहाँ गया, तो भाई मेरे, हमने यहाँ फॉरवर्ड का लफ्ज यूज किया, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, हम अगर यहाँ फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ नॉट टू टॉक लगा देते हैं, तो एक फिक्रे में दो दफा नफी आ गया, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब है मना करना किसी चीज के बारे में, ठीक है। द टीचर फॉरवर्ड, टीचर ने मना किया, किससे मना किया, फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दरमियान बातचीत मत करो, ठीक है। So I'm really sorry, and I want to apologize with you if my volume is facing the distraction with now during my lectures. So please don't forget to subscribe my channel. So
मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको अपने जहन में रखने होते हैं। अगर नहीं भी आपके जहन में रहते तो इसको सिर्फ एक जनरली दफा, एक दो दफा इसको अपने रीड आउट कर लो और उसके बाद डीपली एनालाइज करो कि आपको सेंटेंस की नेचर आपसे क्या डिमांड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तब्दील कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।